सिटी इन पटियाला। सो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और हम लोग इसको इस प्रोग्राम को यहाँ की पब्लिक की जनता के लिए बहुत रिजनेबल रेट पे रखेंगे, ठीक है। उसके रेट के बारे में भी हमारे कर्नल साहब आपको बताएंगे। जितेश सिंह को पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोसीजर के बारे में बताएं जो हमारे किडनी प्लांट ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਨੀ CKD ਸਟੇਜ 5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਜ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। डायलिसिस वाले पेशेंट्स ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਦੀ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਟੂ ਵਾਈਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਫ ਟੂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੋਨਰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਨਰ ਨੈਫਰੈਕਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਏਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨੂੰ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। किडनी ट्रांसप्लांट अब बहुत ही एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है और बहुत पुराना है। 23 दिसंबर 1954 23 दिसंबर 1954 को पहली बार बोस्टन USA में डॉक्टर मरे ने किडनी ट्रांसप्लांट किया था 2 ट्विंस के अंदर, रिचार्ड और हैरी के अंदर। ये बहुत एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, दे कैन बी ऑल हैंडल्ड। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली कि जो रिसिपिएंट है जिसको यानी कि किडनी मिली है वो रिजेक्ट ना करे। तो उसके लिए अब क्या, उस समय तक जब उन्होंने किया था इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स नहीं थी, यानी कि जो बॉडी रिजेक्ट करती है उसको कैसे संभाला जाए, उसको रिजेक्शन से कैसे रोका जाए। तो 1964 में हमारे पास इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग आ गई। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत बैचिंग कम भी होती है तो वो उसको सप्रेस कर लेती है। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, इट्स ए वेरी एस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम, वेरी एस्टेब्लिश प्रोग्राम। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की बहुत बढ़ा देता है। डायलिसिस पे भी कोई कहता है कि मैं डायलिसिस पे चल रहा हूँ, ठीक है 2 हफ्ते में हो जाती है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है ट्रांसप्लांट के बाद ही, उसके बाद वो टोटल फ्री हो जाता है। कुछ दवाइयाँ ज़रूर उसको खानी पड़ती हैं और कोई उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। डॉक्टर हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कल्पेश जी, आपको बताएं। जैसे कि सर ने बताया डिटेल में सारा कुछ, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट के बारे में। तो किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली क्या होता है? जनरली क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट, जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें किडनी खराब होती है, उसके रीज़न होते हैं मल्टीपल। जैसे किसी को BP है, किसी को शुगर है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को स्टोन है, जैसे पंजाब एरिया में स्टोन्स बहुत है। अदर इसके अलावा कुछ किडनी की बीमारियाँ होती है जो बॉडी को डैमेज करती है, साथ साथ किडनी को भी डैमेज करती है। तो ऐसे केसेस में हमें फाइंड आउट करना होता है किडनी खराब क्यों हुई है। तो हमारा मकसद जो है कि हम ट्रांसप्लांट कर तो दें, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद किडनी चलेगी, उसका आउटकम कैसा है, उसके लिए हमें पहले वर्कअप करना पड़ता है कि पुरानी किडनी क्यों खराब हुई थी, वही किडनी की जो बीमारी पुरानी थी वो दोबारा नहीं
किडनी जो लगाते हैं हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसको असर करेगी या नहीं करेगी, वो ना करे उसके लिए हम वर्क करते हैं। प्लस जो ये बताया कि मैचिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैचिंग करते हैं हम ब्लड ग्रुप का, कि ब्लड ग्रुप अगर मैचिंग है तो बहुत अच्छी बात है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग के साथ रिजेक्शन का जो रिस्क कम हो जाता है। अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है तो भी आज की डेट में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होता है उसके अगेंस्ट की जो एंटीबॉडीज होती है उसको हम पहले डिटेक्ट करते हैं, उसका लेवल चेक करके उसके हिसाब से हम प्लाज्मा या इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो एंटीबॉडीज का लेवल कम हो जाता है। जब वो लेवल कम हो जाता है उसके बाद हम तुरंत ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके बाद भी हम एंटीबॉडीज वगैरह मेजर करते रहते हैं। उसके बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका भी सक्सेसफुल रेट काफ़ी अच्छा है, तो वो भी प्रोसीजर है जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा बात आती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो, रिजेक्शन ना हो, तो उसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए होती है। तो जो हमारा काम है कि प्री ऑफ वर्कअप करना है कि पहले पेशेंट फिट है कि नहीं है, डोनर फिट है कि नहीं है, वो वर्कअप करते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांट के टाइम पे वो ठीक रहे और फर्दर भी लाइफ में आगे ठीक रहे, उसके हिसाब से सारे हमें कंटिन्यूस टेस्ट करने होते हैं। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं था, उसके अलावा दूसरा है कि कुछ पुरानी बीमारियां, तो जैसे हम करते हैं कि पहले किसी पेशेंट की बायोप्सी हुई है, क्या उसका जेनेटिक टेस्ट है, कुछ और टेस्टिंग हुई है कि नहीं, वो चेक करते हैं। उसके हिसाब से हम पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। अगर वो पेशेंट क्राइटेरिया में फिट है तो हमारे हिसाब से तो हम उसको आगे ट्रांसप्लांट के लिए फिट करते हैं और उसका आउटकम ज़्यादा बेटर होता है। कई बार ये होता है कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए हैं, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो पेशेंट को आगे रिस्क हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में भी एंटीबॉडीज वगैरह बनती है, तो उसमें भी हम जैसे क्रॉस मैचिंग पॉजिटिव आ गया तो उस केसेस में भी हम प्लाज्मा इम्यूनोथेरेपी सब कुछ देके उस पेशेंट की एंटीबॉडीज कम करके ऐसे जो रिस्की पेशेंट है उसका भी हम लेवल अचीव करके उसको भी ट्रांसप्लांट के लिए लेके जाते हैं और उसका भी आउटकम काफ़ी अच्छा है। ये सारे केसेस हो गए जो डिफिकल्ट केसेस की बात करी हमने। बाकी जनरल केसेस जैसे किसी को शुगर है, बीपी है, ऐसे पेशेंट की किडनी में हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता नहीं है, क्योंकि वो जो बीमारी से धीरे धीरे जाकर किडनी को खराब करती है। तो 15-20 साल तक आराम से वो बीमारी नई किडनी को असर करेगी, उससे पहले हम अचीव कर सकते हैं काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल। रही बात जैसे हमने बताया कि ट्रांसप्लांट का पेशेंट अपना जैसे रूटीन में डायलिसिस करने आना है तो उससे फ्री हो जाता है, वो अपनी जॉब कर सकता है कंटिन्यू, वो ट्रैवल कर सकता है इंडिया में भी, आउट ऑफ द इंडिया कहीं भी जाना है तो उसकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल, बिजनेस लाइफ सारा कुछ बेटर हो जाता है। और ट्रांसप्लांट का आउटकम काफ़ी अच्छा है अगर आप पहले से स्टार्ट से वर्कअप करोगे इनिशियली, उसके बाद अगर डोनर मैचिंग है उसकी एज के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ऐसा नहीं है। जो हमारी पुरानी किडनी होती है उनको हम छेड़ते नहीं हैं, उनको वहीं रहने देते हैं और एक नई पॉकेट यहाँ राइट साइड में नॉर्मली बनाते हैं और उस किडनी को यहाँ रख के उसको अटैच कर देते हैं, जो आइलेक आर्टरी हमारी आर्टरी और वेन आती है। बड़ा सिंपल सा है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है। न तो डोनर को बहुत ज़्यादा सर्जिकल इंटरवेंशन होता है और न ही जो रिसिपिएंट है उसको बहुत ज़्यादा होता है। भाई ये ओनली थिंग इज़ कि हमारे पास वो मेडिसिन सब आ गई हैं जो उसके रिजेक्शन को रोक सकती हैं और रोक देती हैं। तो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक एस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम है। इसके लिए जिस भी व्यक्ति की किडनी अगर फेल हो रही है, हमारे पास 1000 से ज़्यादा डायलिसिस रोज हो रही है, सॉरी हर महीने हो रही है, बगल में हमारी डायलिसिस यूनिट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि जिसका भी रिलेटिव या कोई किडनी फेलियर से अगर वो है, किडनी फेलियर में हुआ है और वो डायलिसिस पे है, तो अगर यंगर एज ग्रुप है तो उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराएं जिससे उसकी नॉर्मल लाइफ रह सके। और अभी तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक पेशेंट 56 ईयर्स तक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल रहा है। 25-26 साल, 27 साल, 30 साल तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। डॉक्टर गुरजोत हमारे सर्जन हैं, जो एस्ट्रिक सर्जन है, आर्मी में मेजर थे, जो वेरी गुड वंडरफुल सर्जन, आपको कुछ बातें बताएंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ लाइफस्टाइल बीमारियां ने इदां दी जो कि जिन्होंने आजकल का एपीडेमिक कहा जाता है। ये बीमारियां आजकल दुनिया के काफ़ी ज़्यादा फैलिया हुई ने, काफ़ी ज़्यादा वध रही ने। इन्हों के असर जो ने हौली हौली कई अपने जरूरी अंगों पर आते, जिस एक बहुत जरूरी अंग अपने गुरदे ने। सो गुरदे फेल होने का, लोगों का डायलिसिस से जान का आजकल सब तो एक बड़ा कारण ये बीमारियां ने जो कि आजकल बहुत प्रचलित ने। तो लोग इस करके बहुत सारे आजकल डायलिसिस के नाल जूझते हैं, कई जगह पर जाते हैं। तुम किसी भी हॉस्पिटल से चले जाओ, डायलिसिस सेंटर के हमेशा आजकल भीड़ ज़्यादा रहती है। सो इस मतलब सिचुएशन दे विच जो किडनी ट्रांसप्लांट है किते हो रहा है, तो एक बहुत ही होप आशा दिंदा है ऐसे मरीजों में। सब तो जो मेन चीज़ है उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मेरे साथी डॉक्टर साहबा ने भी किया कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को पेशेंट का बहुत इंप्रूव कर दिंदा है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। ये पेशेंट सिलेक्शन, पेशेंट की मैचिंग ये होना
तो एक अच्छी सर्जिकल टीम का होना, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। ये सब कुछ होंगे तो पेशेंट का आउटकम बहुत डेफिनेटली बेटर होंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ से मेन चीज़ का वह इफेक्ट होंगे। मरीज अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, तो कॉम्प्लीकेशन रेट टैक्नोलॉजिकल की एडवांसमेंट नाल बहुत आजकल घट हो गए ने इन्हां चीज़ों के विच। साडी टीम एक्सपीरियंसड है, सर ने एक्सप्लेन किया है, तो असी ये पटियाला के आस पास वाले इलाकों में ये फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के राही मुहैया कराना चाहते। थैंक यू। साथ एक बात और अपना हॉस्पिटल का माइलस्टोन शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पटियाला रीजन में सबसे पहले टैवी एक हार्ट का ऑपरेशन होता है जो कि मिनिमल इन्वेजिव के साथ किया जाता है, जिसमें आप लोगों ने पूरी छाती फाड़ के सुना होगा, जिसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। उसका एक एडवांस वर्जन है, वो हमने एक अभी केस किया है टैवी का। अभी हमारे डॉक्टर साहब तो कहीं बिजी थे, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको डॉक्टर। ऐसा होता है कि मेन आर्टरी, जैसे ये हार्ट है तो एक एओर्टा मेन आर्टरी होती है, उसी से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। उसको वापस ना आए तो 3 लिफलेट नीचे होती है, उसमें एओर्टिक वॉल उसको कहते हैं। एज के साथ साथ कई बार उसमें ना कैल्शियम जमा हो जाता है चूने की तरह, और वो होने की वजह से उसका स्टेनोसिस हो जाता है, यानी कि रास्ता जो है कम हो जाता है। जब रास्ता कम हो जाता है, जब हार्ट उसको पंप करता है ब्लड को, तो पूरा पंप नहीं होता है। जब पंप नहीं होता है तो पेशेंट को कभी चक्कर आएगा, कब कुछ होगा, उसका बैक फ्लो की वजह से हार्ट डैमेज होता रहता है। पहले क्या करते थे, ओपन हार्ट सर्जरी करते थे। ओपन हार्ट सर्जरी करके एओर्टा में पहुंच के वहाँ पे प्रोस्थेसिस लगाते थे। उसमें मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा मोर्टलिटी होती थी। अब क्या हुआ कि ट्रांस कैथेटर आ गया कि फिमोरल आर्टरी से यहाँ से डाला, आर्टरी से डाला, और वहाँ पहुँच करके एक प्रोस्थेसिस होती है, उसको जाके फिट कर देते हैं। और वो वाला जब वहाँ जाके फिट हो जाता है, जो पुराना वाल एक तरफ हो जाता है। तो ये हमने टावी यहाँ किया, पटियाला में पहली बार टावी हुआ है। इससे वेरी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। पेशेंट ठीक है, मेरे हॉस्पिटल अभी भी एडमिट है। तो ये पहली बार यहाँ पर हुआ है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कार्डियोलॉजी सेटअप है वो भी बहुत एडवांस सेटअप है, और हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो सर्जन्स हैं, दे आर वेरी वेरी क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।